हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। आज जो सेगमेंट में लेकर आया हूं वो है नो योर डिपार्टमेंट, जिसमें आज मेरे पास स्कूल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी से एक और फैकल्टी आए हैं। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे और डिपार्टमेंट के बारे में और भी चंद सवालात करके जानेंगे उनसे, जिनका नाम है डॉक्टर निशिगंधा डोके, जो कि वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर निशिगंधा डोके वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी past 3 years. She has done bachelor in occupational therapy and masters in occupational therapy and musculoskeletal science from St. G.S. Medical College and KEM Hospital, Parel. Currently, she is doing PhD in occupational therapy from Lokmanya Tilak Municipal Medical College, Sain. का मैं वार्म वेलकम करता हूँ। गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? गुड आफ्टरनून अभिनव, थैंक यू फॉर योर वार्म वेलकम। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बोलो कैसे? एज यूजुअल एक्चुअली जैसे आप दिखाई दे रही है, थैंक यू सो मच एंड माय प्लेजर फॉर दैट। व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स स्कूल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी वर्किंग ऑन? प्लीज टेल अस। Okay, so currently we have 8 batches of intern. Batch 22, 23, 24. So they have divided into 8 batches. So each batch has given one guide, that is your teaching faculty, which are guiding them for their research projects. You mean to say as like a mentor? Yes, as a mentor, they are helping them for the research projects. Also, on individual basis, each faculty is are having research projects such as article publication or a case record publication. Also, our teaching faculty members are working on the revision of our bachelor occupational therapy curriculum and syllabus, which is to be implemented next year based on National Education Policy and University Grants Commission, that is UGC norms and guidelines. Yes, nicely explained. Can you share the noteworthy activities of School of Occupational Therapy? So, on the occasion of World Occupational Therapy Day, that is on 27th October, every day at School of OT, we conduct or we organize various activities. So, for hospital faculty, we have organized various camps. For example, one camp was organized based on the back care protocol, and ergonomic camp was organized for DY Patil Hospital staff. As well as for students, there are various intra-school competitions, for example, poster making and cultural events for Bachelor Occupational Therapy program students. Also, inter-school competitions, so जो बच्चे बाहर इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ने डिफरेंट प्राइज वन किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्विज कॉम्पिटिशन्स, पोस्टर मेकिंग, एडाप्टिव डिवाइस मेकिंग, मोनो एक्टिंग. Also, we have annual occupational therapy conference. So, in that also, our students have participated and they have won different competitions. For example, dancing है, singing है, fashion show है, scientific events हुए जैसे कि poster making है, innovative technology है. तो ये सारे competitions में हमारे बच्चों ने और faculties ने जीते हैं. Nice. How do you stay updated and informed about new developments in your school and Department of Occupational Therapy? Okay, so our department from time to time, they organize or conduct various workshops for our teaching faculty as well as students, which helps in to bridge and fill the gap in our existing knowledge and helps us to keep updated with the current advancement in our profession. Also, we have one page of DY Patil School of Occupational Therapy where we keeps on posting current जो भी हमारे इवेंट्स है या फिर जो भी हम कंडक्ट करने वाले हैं उसके अपडेट सारे हमारे पेज पे चले जाते हैं, जो स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो पार्टिसिपेट करते हैं. Can you share any upcoming events or conferences of occupational therapy? Yes, we are planning to have such. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हम बनाते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी रिलेटेड जो स्प्लिंट्स है, जो हम एक्सटर्नल डिवाइसेस बनाते हैं, वो कैसे बनाया जाए, वो एक स्प्लिंट वर्कशॉप हम लेने वाले हैं. ऑल्सो रिसर्च में गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस करके एक कोर्स होता है, वो हम कंडक्ट करने वाले हैं. CPCR का वर्कशॉप हम कंडक्ट करने वाले हैं फॉर स्टूडेंट्स. एंड फॉर फैकल्टी वी आर प्लानिंग टू हैव अ मेडिकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी कोर्स. Also, we are going to participate in our annual National OTCon 2024, which is to be held in January 24 in Kochi. Oh wow, nice. All the best for that. Thank you so much. Okay, what is the role of occupational therapy in community development? That is an important question. Yes. So, as an occupational therapy, we uses holistic approach. So, we not just
ट्रीट द अफेक्टेड पार्ट, बट उसके वजह से जो हमारी बाकी चीज़ों में रुकावट आ रही है, जैसे अगर कोई तो आपका समझो फ्रैक्चर हुआ है पैर का, तो एज एन ओटिस्ट हम सिर्फ पैर के फ्रैक्चर पे फोकस नहीं करेंगे, उसके अलावा भी मुझे पैर पे फ्रैक्चर हुआ है तो मुझे ड्रेसिंग करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, मुझे कम्युनिटी में वापस जाने के लिए डिफ़िकल्टी हो रही है। अगर मैं वर्किंग हूँ तो मैं पूरा टाइम, जैसे 3 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं फ्रैक्चर हील होने के लिए, तो वो पूरा टाइम मैं एक जगह पे नहीं बैठ सकता। तो कम्युनिटी री इंटीग्रेशन वो कैसे कर सकते हैं, मैं ऑफिस तक कैसे जा सकता हूँ, या फिर जैसे कि डेली एक्टिविटीज़ हमारे जो अफेक्टेड हुए हैं वो मैं इंडिपेंडेंटली या फिर दूसरों के ऊपर कम से कम डिपेंड करके कैसे खुद से कर सकता हूँ। और साथ साथ ये भी कि भाई ऑल ओवर द बॉडी किस तरह से, मतलब पूरी बॉडी ही काम करे, मतलब एक हिस्से की वजह से जो और इससे परेशानी में है या रुक रहे हैं, जिनका यूज नहीं हो रहा है, वो भी किया जाए। करेक्ट। और जस्ट फिजिकल एक्टिविटीज नहीं, अभी मेरा मेंटली भी अफेक्टेशन होगा क्योंकि मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मैं कमा नहीं पा रही हूँ, या फिर मैं मेरे बच्चों के साथ खेल नहीं पा रही हूँ, मैं मेरे स्पाउस को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ। तो वो इमोशनल फैक्टर भी हम कैसे उसको ओवरकम करना है वो करते हैं। देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स कैसे बढ़ाना है। ओवरऑल हम पूरे सारे एस्पेक्ट पे वर्क करके पेशेंट को इंडिपेंडेंटली सारे एस्पेक्ट पे कैसे बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज होलिस्टिक अप्रोच, और वो कम्युनिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नाइसली एक्सप्लेन्ड। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, गिवन द डायनामिक नेचर ऑफ द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हाउ डू यू एंश्योर दैट योर करिकुलम रिमेन्स अप टू डेट and relevant to prepare students for the evolving demands and challenges of the profession? Okay, so for that we have a board of studies meeting on the regular basis. So board of studies में क्या होता है, बाहर के जो इंस्टीट्यूट के फैकल्टीज है वो भी आते हैं और वो सारे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैकल्टीज डिस्कस करके हमारे सिलेबस को अपग्रेड करते हैं। Okay, yes. So we get that syllabus updated on the regular basis. Also we conduct few or advanced workshops at our school level for students so that they are on the same page to the changing trends. Apart from our regular curriculum, we also have few special programs for students overall development, for example personality development, time management, computer technology related जो भी courses है etc. Nicely explained, thank you so much. यहाँ पर थी मेरे साथ डॉक्टर निशिगंधा डोके, जिन्होंने काफी ज्यादा खूबसूरती से अपने डिपार्टमेंट के बारे में, वहाँ पर हो रही एक्टिविटीज के बारे में, कौन सी कॉन्फ्रेंसेस होने वाली है उसके बारे में, कौन सी कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं और स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा होता है उसके बारे में हमें बताया है। और दोबारा हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी यहाँ पर आएंगे और हम उनसे नो फैकल्टी में भी सवालात करेंगे और उनसे बात करेंगे। बने रहिए हम लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो ज्ञानवाणी पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू निशिगंधा। Thank you for inviting me. Thank you so much.